Assalamu alaikum. I'm Tawfiq Pasha. Some of you probably know me, but everybody doesn't know me. Shukar Allah ka. There's still time for me to do more work. I am somebody who has been involved with the environment all my life. 20, 30, 40 years ago, it was not cool to be involved with the environment, and very few people were involved with growing plants and flowers and fruits and vegetables. And that's how I grew up, living on a farm just on the outskirts of Karachi. When you are in this field, when you're growing plants, you're growing flowers or fruit, then you don't get limited. You start spreading out. You were first growing a couple of varieties of fruits. Then it expands. You grow more fruit. You grow different flowers. And the same way, your scope of work also increases. I love to call it the canvas, that becomes wider and wider and wider. You start adding more things to it. So from being a florist, a gardener, a planter, a farmer, and I've grown and I grow all crops. So from flowers to fruit to vegetables to grains, I started spreading out. And I was always invited to talk about the environment, and I just started working for water conservation and environmental conservation and awareness for children and advocacy and working with women and for their livelihood. And these are the things that brought me out, and I became, I think, complete with nature. In my life, I have seen the blue skies in Karachi. As a youngster, I used to see blue skies in Karachi, and I saw them disappear. I saw species of birds and animals disappear from the farm. I saw so much change in our environment, and we started talking about climate change. And so much so that climate changed so drastically, and in the last few years, it has been disastrous. The change has been disastrous. We have seen the weather patterns completely go out of sync. We have seen extreme weather events, whether they are droughts, heat waves, rains, floods, glacier melts. We've seen it all. And we've seen it already affect our food security. Now, how did this all happen? What is nature? Nature in itself is a system. The trees grow, the oxygen, the grain, the seed, the birds, the insects. Everything in nature is linked and interdependent. Out of the chain, you pull out one and the whole chain collapses. And what did we do? We went out and completely changed that system. And we took out so many of the kegs from the chain, so many of the links. This book, The Earth Transformed, is written by Peter Frankopan. This book, it's a big thick book, but this is incredible because it tells you the whys, the hows, and it also tells you how to proceed with this. What are the things? I've just spoken very generally, but let's put it into perspective. And let's put it into perspective from Pakistan's point of view. We are amongst those countries which have contributed the least to climate change. And we've been affected the most. And we are going to be affected much more over the next 25 years. People say
ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे and then there will be no more glaciers. I can't imagine a time when there would be no more glaciers. I just can't imagine it. I don't know how it's all going to work. How are we going to grow our food? Climatic changes where the heat index is going up. There are places in Pakistan where the temperatures will rise to 47 degrees in the next few years, and it's very close, 47, maybe go up to 50. And that becomes inhabitable. People won't be able to live anymore over there. They will have to migrate from their homes, their ancestral lands. These are indigenous people who've lived in those spaces for generations. We have thousands of year old history and a heritage. And these people have been living in those spaces and those areas for thousands of years. They're going to have to leave their households. They're going to have to leave their homes. They're going to have to leave their lands. And they already have. There is climate migration taking place already in our country. Whether it's from the desert area of Thar, whether it's from the mountainous regions, they're moving. There is a complete change happening. And what is it that did all this? This was the use of the fossil fuels, and so many other ways that we affected the environment. So the climate change plus the use of pesticides and the poaching and the hunting of animals and the indiscriminate fishing in the oceans. The old proverbs that said there's a lot of fish in the sea doesn't hold true anymore. And when you read through this book, for people who are not so aware, and everybody can't see it also, and it's not their fault because we're not really used to the environment. For most people, the environment is outside. दरवाज़ा खोल के बाहर जाएं और वहाँ environment है. What they don't realize is कि जिस space में हम बैठे हैं वो भी environment के अंदर ही है, वो environment का हिस्सा है. And we are contributing in a good way and a bad way to the entire environment, how we live in here. For people who are not in touch with the actual environment, with the Maa Dharti, the Mother Earth, Mother Nature, the rivers, they have a life. And I've often said, मैंने बहुत अक्सर मैं कहता हूँ कि ज़मीन और ये मदर अर्थ, दिस इज़ अलाइव, और इसकी रगों में भी खून बहता है, ये भी सांस लेती है. इसके लंग्स, हम कहते हैं कि किसी भी सिटी के लंग्स उसके ट्रीज होते हैं, बट मदर अर्थ के लंग्स कौन से हैं? दोज आर ऑल्सो द ट्रीज. They take the carbon dioxide that Mother Earth has produced and convert it into wood, they sink it into the ground, and they give out oxygen to keep the earth and the environment healthy. तो रगों में खून कौन सा बहता है? तो इस ज़मीन के रग, इसकी नदियाँ हैं. हमारे पास भी दुनिया की बड़ी नदियों में से एक है, द रिवर इंडस, सिंधु. और इसमें जब तक खून बहेगा, जब तक ये धरती जिंदा रहेगी. हमें पता है कि अगर इंसान को खून की बीमारी हो जाती है, इट इज़ फेटल, ही डाइज. व्हाट डू यू थिंक ऑल आवर पोल्यूशन इन द रिवर्स इज डूइंग? And we've taken out all the water. They say that this is what the river Indus stopped Alexander. वो आया, उसने देखा, and he said, too much water, I can't cross it. It's empty now. हम उसका सारा पानी निकाल लेते हैं. और लोग मुझे कहते हैं कि जो रिवर का पानी समंदर में चले जाता है, वो पाशा साहब वेस्ट हो रहा होता है. वो वेस्ट नहीं हो रहा होता है, वो समंदर में नहीं जा रहा होता है. उसने अपनी जर्नी माउंटेन से शुरू नहीं की है.
उसने अपनी जर्नी समंदर से शुरू की है, भाप बन के पहाड़ों में जाके बरस के वो दोबारा घर वापस आ रहा होता है। वाटर इज कमिंग बैक होम, इट नीड्स टू फ्लो इन दैट रिवर टू कीप दैट रिवर अलाइव। सो वी हैव टू कीप द ब्लड फ्लो ऑफ द अर्थ, द लंग्स, द एयर, द एटमॉस्फेयर, द सॉइल। हमने ज़मीन को मार दिया है। इस बुक में आप वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दिस विल टेल यू how much can I sit and tell you? How much can you listen to me talk? But you can read a book. And reading books is a very good habit. It gives you a lot of knowledge. This will tell you what is it we do. It says the untold history. So it tells you from the beginning how it was, what did we do, what it has become, and what can be. On World Environment Day or any of the other days that we celebrate, what is the reason of celebrating that one day? What can we achieve by it? What we do manage to achieve is globally, because of all the initiatives and all the awareness that is being created on that particular day, millions of new people get to know about it. But it shouldn't be limited to just that one day. You need to keep yourself in the knowledge, aware. You must live being aware of your environment, about nature. You must ensure that you are living a sustainable life. I feel that every human being must return to the earth the resources that he has taken from the earth. मैंने खाना खाया है, मैंने कपड़े पहने हैं, कितना कुछ मेरे घर में मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, उसके लिए ट्रीज़ कटते हैं हम, एवरीथिंग। हमारे जूतों का लेदर भी जो है वो भी ज़मीन से आता है। लेदर कैसे ज़मीन से आ सकता है? गाय से आता है ना लेदर। गाय क्या खाती है? चारा। चारा कहाँ से आता है? ज़मीन में से आता है। एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ दिस अर्थ ऑफ आवर्स। हमने इसके अंदर, आपको पता है कि इसके सॉइल के अंदर हजारों लाखों मखलूक हैं जो नज़र आती हैं और जो नज़र नहीं भी आती हैं। और हमने क्या कर दिया है कि हमने वो मिट्टी को अगर आप लेकर टेस्ट करें तो उसमें कोई मखलूक नहीं है। जिस तरह हमने हमारे एटमॉस्फेयर में से परिंदे को ख़त्म कर दिया है, बटरफ्लाइज, बीज, उसी तरह हमने ज़मीन में से भी मखलूक को ख़त्म कर दिया है। और ज़मीन तो माँ है। अगर माँ बीमार होगी तो बच्चा कैसे अच्छा पैदा होगा, सेहतयाब कैसे होगा, माँ का कुंबा कैसे चलेगा, माँ का घर कैसे चलेगा। So we have to be aware of every action that we are taking. न्यूटन ने बताया था, उसके सिर पे सेब गिरा था और उसने हमें कह दिया था, वो ग्रेविटी से शुरू हुआ और उसने फिर कह दिया कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन ऑफ आवर्स, उसका एक असर इस धरती पर होता है, ज़मीन पर होता है, हमारे पानी पर होता है, हमारे हवा पर होता है, हमारे परिंदों पर होता है, हमारी सारी मखलूक पर होता है। और हम बेदर्दी से चले जाते हैं। हमने हवा को मार दिया, पानी को मार दिया, ज़मीन को मार दिया, मखलूक को मार दिया। हमारे इस कुछ हज़ार सालों में जिसमें हम इस ज़मीन पर रहे हैं, हमने कितना जानवर मार दिया। पिछले 50 साल में द अमाउंट ऑफ एनिमल्स दैट हैव गॉन एक्सटिंक्ट, अगेन जस्ट लाइक द ग्लेशियर्स। मुझे समझ में नहीं आता है ऐसा वक्त जब ग्लेशियर्स ना हो, लेकिन आप सोचें, टाइगर्स ना हो, राइनोसोरस नहीं हो, एलिफेंट्स ना हो, कितनी चीज़ें हमने जो देखी हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क? हम बच्चों को क्या दिखाएंगे?
सिर्फ तस्वीरें, सिर्फ बुक्स पढ़ें. Read this one. I would highly recommend it, even if today you have no interest in the environment. आप एक 9 to 5 ऑफिस जाते हैं, एयर कंडीशन स्पेसेस में रहते हैं, गाड़ी भी एयर कंडीशनड है, घर भी एयर कंडीशनड है, आपकी लाइफस्टाइल भी एयर कंडीशनड है, खाना तो खाते हैं आप, कपड़े तो पहनते हैं. Read about it. This will tell you how much your life, your very existence is dependent on a healthy planet, on a healthy environment. This book is going to tell you. हम शहरों में रहते हैं, बट हमारे साथ साथ एक ज़माने में तो 60% पॉपुलेशन गांव में रहती थी, सिर्फ 40% शहरों में रहती थी. अब वो एटलीस्ट 50-50 तो हो गया है, और कुछ लोग कहते हैं कि इन अ शॉर्ट टाइम 60-40 ऑपोजिट वे में हो जाएगा. शहर में ऑब्वियसली जब लोग आते हैं रहने के लिए, तो फिर शहर को डेवलप होना पड़ता है, वो स्प्रेड होता है. आप पाकिस्तान के किसी भी शहर को ले लें, इंक्लूडिंग कराची. कराची एक एरिड रीजन है, ये एक डेजर्ट का एंड पोर्शन है, और मे बी इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डेजर्ट. जो ये थार का डेजर्ट आता है, आपका रन ऑफ कच्छ आता है, एंड इट ऑल एक्सटेंड्स इनटू ईरान. एंड to be able to accommodate more people in certain areas, including Karachi, जिसके पास एक limited green area था, जो मलीर का एरिया था, that suffered. Maleer was the fruit basket of Karachi for maybe 300 years or more, and not only Karachi, but it took things to other places. Papita, mirchi, so many other things only grew here. Populations बहुत छोटी होती थी. आज पॉपुलेशन बढ़ गई है कराची की इतनी कि मलीर के बागात काट दिए गए हैं, मुल्तान में आम के बागात काट दिए गए हैं, इस्लामाबाद में पाइन ट्रीज काट दिए गए हैं, लाहौर में एग्रीकल्चरल लैंड हैज़ बीन टेकन अप. आप कहीं भी चले जाएं, आप यू गो इनटू योर सिट्रस ग्रोइंग country side. When I say country, I mean the citrus area of Pakistan, and you'll find कि किन्नू के बागात कट रहे हैं. किसके लिए? हाउसिंग स्कीम्स के लिए. लुक एट द लॉस. द प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड जो सबसे अच्छा खुराक उगाता है, उसको आप ख़त्म कर देते हैं और उसमें घर बनाने रहते हैं. शहर के अंदर कराची एज इट डेवलप्ड एंड अदर सिटीज़ ऑल्सो, यू लॉस्ट ऑल द ग्रीन एरियाज. फिर भी at one time Karachi had a lot of parks and the roadsides and the road dividers and the roundabouts. लेकिन आपने क्या किया? गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई, आपको रोड को एक्सपैंड करना पड़ गया. आपने रोड को एक्सपैंड किया, जो उसके साइडों में बीच में दरख्त लगे हुए थे वो आपने काट दिए. दरख्त क्या चीज़ है? दरख्त एक छतरी है, आपको ज़मीन को धूप से साया देती है. जब छतरी हटा देंगे सिर गर्म हो जाएगा, ज़मीन गर्म हो जाती है. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उसके पत्तों में से जब हवा गुजरती है वो ठंडी होती है, वो ऑक्सीजन देती है, वो आपको फूल देती है, वो आपके इलाके को फूलों से खूबसूरत करता है, वो आपको खुशबू देता है, वो आपको खाने को देता है. और कुछ दरख्तों के बारे में हम कहते हैं ये तो बेकार है पाशा साहब, इसमें ना फल है, ना फूल है, ना खुशबू है, ना कोई खाने की चीज़ है, ना इसकी लकड़ी हमारा फर्नीचर बनाने के काम आती है. बेकार है. बेकार कोई भी चीज़ नहीं होती है. उस दरख्त के पत्ते एक कीड़ा खाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अ पर्टिकुलर चेन, विच देन गिव्स यू अदर इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इन द सिटी. कराची के साथ में हमने क्या किया है? वॉट हैव वी डन विद द अदर सिटीज़? वेरी क्विकली destroying the environment and losing our trees. Karachi is a sea city, it's a coastal city. It's on the seaside. Strangely enough,
दुनिया के आप किसी भी सी साइड सिटी में चले जाएं, कोस्टल सिटी में चले जाएं, कोस्टल विलेज में चले जाएं, टाउन में चले जाएं, वहाँ लोग फ़िश बहुत खाते हैं। कराची में इतने लोग फ़िश नहीं खाते हैं, और आधे से ज़्यादा लोग जो फ़िश खाते हैं वो समंदर की मछली नहीं खाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव दैट एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड ऑफ बिलोंगिंग टू द सी साइड। अ लॉट ऑफ पीपल वो क्या खाते हैं, वो दरिया वाली, पॉन्ड्स वाली, फ़िश फार्म वाली मछली खा के वो कहते हैं ये मछली है। नहीं, समंदर में तो कितनी वैरायटी है फ़िश की, कैसी कैसी फ़िश है। एंड बिकॉज इतनी बड़ी पॉपुलेशन कराची में रहती है जिसका समंदर से कोई लिंक नहीं है, और वो हमारे सी साइड्स के लिए डिसीजन मेकर्स होते हैं। उनको समंदर है, साहिल है समंदर पे, रेत नहीं पसंद है। वो उसको टाइल करने के चक्कर में होते हैं, वो उसमें घास लगाने के चक्कर में होते हैं। फॉर गॉड सेक, सी साइड्स, और ख़ास तौर पे हमारे पास वो ना वो बारिश है, वो कोकोनट पाम्स नहीं उगते हैं समंदर के साहिल पर। और कहते हैं लोग, लेकिन थाईलैंड में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मोम्बासा में तो कोकोनट ग्रो करता है समंदर के साहिल पर। मालदीव्स में आप देखें जी, वो सब इंडियन ओशन पर लोकेटेड हैं, हम अरेबियन सी पर लोकेटेड हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस। हमारी हवा में सॉल्ट ज़्यादा है, हमारे समंदर के पानी में सॉल्ट ज़्यादा है। दैट इज़ व्हाट इफेक्ट्स थिंग्स ऑन द सी साइड ग्रोइंग। उनकी अपनी एक इकोलॉजी है। और हमारे सी साइड्स पे जहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है, सैंड ड्यून्स होते हैं। हम उन सैंड ड्यून्स को हमने लेवल कर दिया है। हमारे सी व्यू पर रोज़ ट्रैक्टर चलते हैं, कचरा उसको एजिटेट कर देते हैं, फिर वो ऊपर कलेक्ट करके वो उठा लेते हैं उसको। ये कचरा कहाँ से आता है? रात को क्या कोई किसी और मुल्क से लोग आते हैं जहाज़ में और वो अपना कचरा फेंक कर चले जाते हैं? नहीं, हम फेंकते हैं। हमें, और एक मैंने क्लिप देखी थी जिसमें वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, और वही कचरा उधर ड्राइंग रूम में कालीन पर फेंक रहे हैं और इधर फेंक रहे हैं। नहीं करते हैं ना, आप घर के अंदर नहीं करते हैं, तो फिर आप घर का कचरा झाड़ू करके दरवाज़ा खोल के बाहर क्यों फेंक देते हैं? आप जब सी व्यू पर जाते हैं या किसी भी साइड, मैं प्रिंसेस ऑफ होप पर गया हूँ और वहाँ मैंने कचरा देखा है। लोगों ने लेक सैफुल मुल्क को नहीं छोड़ा है, अताबाद झील को नहीं छोड़ा है, फेरी मेडोज को नहीं छोड़ा है। नोवेयर, फ्रॉम द पैम्पर्स टू द जूस पैकेट्स टू द एम्प्टी, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट सो मच। और इससे क्या होता है? ये आप फेंक देते हैं, ये हवा में उड़ के निकल जाता है। आप कहीं थोड़ा सा शहर से भी बाहर निकलें, आपको ये थैलियाँ ये दरख्तों में लटकती हुई हवा में उड़ती हुई नज़र आती हैं। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ये कुदरती तौर पे दरख्तों में थैलियाँ नहीं लगी हुई होती थी, ये हमने किया है। ये उड़ के दरिया में, आप सोचें कि आप अगर लाहौर में, पिंडी में, पेशावर में आप एक थैली दरिया में फेंक देते हैं, वो इस समंदर में आके गिरती है। दरिया की जो मछली है वो उस थैली में घुस जाती है, वो मर जाती है। वो थैली समंदर में आती है। वो अजीब अजीब किस्म का जो हमारा गार्बेज है, कुछ तो हमारे मखलूक समंदर की, उनकी वजह से दे डाई, मरते हैं। और हमने कितनी अजीब अजीब चीज़ें देखी हैं। वो एक वीडियो थी, पिक्चर थी ऑफ द सी हॉर्स विद द क्यू-टिप। आई मीन दैट इज सैड। समंदर के अंदर जो ज़मीन है, क्योंकि समंदर के नीचे भी तो खड्डा तो नहीं है ना, वो पानी आर पार तो नहीं है ना दुनिया में, समंदर के नीचे भी ज़मीन है। वहाँ की जो मिट्टी है वो भी समंदर को लाइफ देती है। उसी तरह दरिया के नीचे जो मिट्टी है वो उस दरिया को लाइफ देती है। हमने उस मिट्टी को भी मार दिया है। हमने उस पानी के अंदर इतना पोल्यूटेंट डाल दिया है, अपार्ट फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट, हर किस्म का केमिकल पानी में। और हमारे घरों के अंदर से, हमारी फैक्ट्रीज़ के अंदर से, हमारे सर्विस स्टेशंस के अंदर से वो जो दुपट्टा रंग करता है
वो भी अपना वो पानी लेकर यूं करके फेंक देता है। वो सब कहाँ जाता है? वो दरिया में जाता है और दरिया से समंदर में जाता है और वहाँ की मखलूक को वो पॉइजन करता है। कुछ मर जाती हैं, कुछ के जिस्म में जहर घुस जाता है और हम उसको खाते हैं और वो जहर हम में चले जाता है। और एक ऐसा वक्त आ रहा है कि हमारे समंदर डेड हो जाएंगे। हमारे मुल्क में झीलें ऑलरेडी डेड हो चुकी हैं, उनके अंदर मछली ख़त्म हो चुकी है, उनके अंदर जो पानी के अंदर रहने वाले पौधे हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। दे डेड, इट्स ऑल गॉन। किसने किया? मैंने किया। मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। मेरे बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? अगर मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? और यहाँ पर सिर्फ मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चों के बच्चे भी आने हैं। आपके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे आने हैं। हम, आप और मैं आसमान से नहीं टपके थे परसों। हमारे ख़ानदान पीछे जाते हैं, दादा परदादा परदादा, उसका बाप उसका बाप उसका बाप, कितनी नस्लें। हम जो पानी गंदा करके बाहर कर देते हैं, दरिया में नहीं आया, समंदर में नहीं आया तो पाशा साहब ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। हमारे गांव में पॉन्ड्स बने हुए होते हैं, पानी जमा हुआ होता है, जगह जगह पर पानी जमा हुआ होता है और वो पानी ज़मीन के अंदर रस के अंदर जाता है और ज़मीन के अंदर जो आबी ज़खायर हैं जिसको हम एक्वाफर्स कहते हैं वो उसके अंदर चले जाता है। हमारे पेस्टिसाइड्स, हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स आप स्प्रे कर रहे होते हैं, पट्टी बांधी हुई होती है, गैस मास्क लगाया हुआ होता है। खाते वक्त भी गैस मास्क लगाएंगे क्या हम? और वो ज़मीन के अंदर चले जाता है। तो पहले तो वो ज़मीन को मारता है, मैंने ज़मीन के बारे में आपको बताया, सारी मखलूक ख़त्म कर दी उसके अंदर, और फिर वो अंदर जाके आबी ज़खायर को कंटामिनेट करता है। एक बहुत कम अरसे पहले हम एक मुल्क का नाम लेते थे और हम कहते थे देखो वहाँ तो ज़मीन दोस्त जो पानी है उसमें आर्सेनिक है, पाकिस्तान में नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर आर्सेनिक है, आज पाकिस्तान के पानी में आर्सेनिक है और आर्सेनिक पीकर आपको नज़र आएगा। एक किसी ने मुझसे कहा था कि पाशा साहब हमारे गांव में तो कोई इन चीज़ों की वजह से नहीं मारा है। मैंने क्या, मरने के बाद यहाँ टिकट चलता है? आप गांव के बच्चे सारे जमा कर लें और मैं अभी से बता रहा हूँ, जिनका पेट फूला हुआ है उनको पानी का प्रॉब्लम है, वो जो पानी पी रहे हैं उसमें मसला है, वो बीमार हो रहे हैं। ऑल दिस arsenic and all these other chemicals that are in our water, so many diseases जो आजकल के बच्चों में होती है पैदाइश पर, वो हमें कभी नहीं होती थी, हमारे बच्चों को नहीं होती थी। चाहे वो ऑटिज़म हो, उस तरह के कितने और प्रॉब्लम्स हैं आजकल के बच्चों को। इट्स बिकॉज ऑफ आवर फूड एंड आवर वाटर। आप कराची के अंदर हैंड पंप लगाएं, पानी निकलता है, बहुत जगहों पर मीठा पानी निकलता है, कंटामिनेटेड है। आप हमारी समंदर की कोई भी मछली निकाल लें, कंटामिनेटेड है। आप दरिया की कोई भी मछली निकाल लें, कंटामिनेटेड है। आप किसी भी झील की मछली निकाल लें, आप किसी भी फ़िश फार्म की मछली निकाल लें, उसका पानी कहाँ से आता है? बाहर से तो नहीं आता है ना, आसमान से, चांद से नहीं, वही दरियाओं का, नदियों का, झीलों का पानी होता है जिसको हम तालाबों में भर के मछलियाँ पालते हैं। मैंने फूड सिक्योरिटी का नाम लिया था। हमारी फूड सिक्योरिटी इफेक्टेड है। कैसे होती है हमारी फूड सिक्योरिटी इफेक्टेड? हम बात करते हैं, कुछ लोग इसमें नहीं बिलीव करते, लेकिन कुदरत में, इस निज़ाम में हर चीज़ का टाइम होता है। सिवाय एक दो ऐसी मखलूक है जिनके लिए वो सीज़न इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, अदरवाइज परिंदे भी
सीज़न में अपना अंडा देते हैं। किस सीज़न में देते हैं? बाहर से पहले, ताकि जैसे उनका चूज़ा बाहर निकले तो ऑलरेडी बाहर है, उसको खुराक खिलाने के लिए वाफक मकदार में चीज़ें मिलेंगी। बारिश के मौसम में नहीं पैदा करते हैं, ख़ज़ा में नहीं पैदा करते हैं, सर्दियों में नहीं पैदा करते हैं, क्योंकि उस वक्त खुराक नहीं होती है उनकी। इसी तरह फल, फूल, सब्जियां, आपका अनाज, इनको उगाने का एक सीज़न होता है। चीज़ों को उगाने के लिए सीज़न का क्या मतलब होता है? उसमें क्या होता है सीज़न में? मैं आपको बताता हूँ। सीज़न, आपको पता है कि गर्मी और सर्दी में क्या फ़र्क है? टेम्परेचर्स। सर्दी में टेम्परेचर लो हो जाता है, दिन भी ठंडे हो जाते हैं, रातें और भी ठंडी हो जाती हैं। गर्मियों में टेम्परेचर राइज करता है, गर्म हो जाता है। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। प्लांट्स के जो सीड हैं उनको ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ सीड्स को मुख्तलिफ टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, वरना तो हर चीज़ कभी भी उग जाएगी और आगे पीछे कोई ऐसे नहीं होता है। गंदम का जब टाइम आता है उस वक्त आप सीड लगाते हैं। आपने अगर दिल में सोचा फरवरी के महीने में मैंने सीड लगाना है, तो नहीं, गंदम नहीं उगेगी। थोड़ा सा पौधा उग जाएगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो जो ये क्लाइमेटिक चेंजेस, जो वेदर के पैटर्न्स में चेंजेस आ रहे हैं, हम शुक्र है अल्लाह का कि दिन और रात के ये जो विंटर और समर के नंबर ऑफ आवर्स हैं, इसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा ऑर्बिट उससे कनेक्टेड है। लेकिन हम टेम्परेचर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। हमने टेम्परेचर्स को बढ़ा दिया है, गर्मी बढ़ गई है। आजकल सर्दियाँ वो नहीं है जो पहले होती थी। उतना ठंडा नहीं होता है, उतने लंबे अरसे के लिए ठंडा नहीं होता है। या जैसे हमने इस मर्तबा देखा कि ऐसे इलाकों में जब बर्फ़ को पिघलना था तो बर्फ़ गिर रही थी। वो हमारे क्रॉप्स को इफ़ेक्ट करता है। एकदम से गर्मी ज़्यादा हो जाती है, फल, दाना, सब्ज़ी वो साइज़ नहीं गेन कर चुकी होती है, और फिर उसे टेम्परेचर्स की वजह से उसको पकना शुरू करना पड़ता है, वो पकने लगती है। एक और मिसाल देता हूँ मैं आपको गंदम की। जब गंदम तैयार होती है, ग्रो कर चुकी होती है, अपने ऑप्टिमम साइज़ पर आती है, फिर एक्सट्रीम हीट आता है और गंदम के ग्रेन को कम्प्लीटली डिहाइड्रेट करता है। इसी तरह चावल, जब चावल का पकने का टाइम होता है, गंदम का पकने का टाइम होता है, किसी को आप ज़मींदार जो किसान है असली, उसको आप कहेंगे बहुत गर्मी हो गई है, वो कहेगा हाँ जी गंदम का टाइम है, फसल अब बिल्कुल तैयार हो गई है। उसको डिहाइड्रेट होना होता है। इस साल गंदम डिहाइड्रेट नहीं हुई, नॉट कम्प्लीटली। जो हमने 2 महीने पहले, 1 महीने पहले जो हमने गंदम हार्वेस्ट की थी, उसको अगले साल इस वक्त तक हमने ज़ख़ीरा करके रखना है और खाना है। लेकिन अगर उसका मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो पड़े पड़े सड़ने लगेगी और फिर हमारे पास खाने के लिए गंदम नहीं बचेगी। इसी तरह हमारे बहुत सारे फल, बहुत सारी सब्जियां इन क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से उनकी जो यील्ड है, जो फसल जो निकलती है आपके 1 एकड़ में से, जो जितना फसल निकलती है वो कम हो रही है, वो उतनी अच्छी नहीं हो रही है। एक और चीज़ हो जाती है, मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाता है, कीड़े के लिए आइडियल मौसम हो जाता है, वो फ़ौरन रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। उसका टाइम नहीं होता है इस क्वांटिटी में बढ़ने का, और जब उसको बेस्ट माहौल मिल रहा होता है, वो इतने अंडे देते हैं, इतने अंडे देते हैं, इतने अंडे देते हैं, और इतने बच्चे पैदा होते हैं, और उनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है, तो वो 1 महीने के अंदर पता नहीं कितने जनरेशन्स पैदा करके आपके खेतों को डिसमिनेट कर देते हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने तेल जलाया, कचरा फेंका, पोल्यूशन की, कार्बन इमिशंस किए, दरख्त काट दिए,
समंदर जो है वो दरख्तों से ज़्यादा ऑक्सीजन बनाती है, लेकिन समंदर उस वक्त ज़्यादा ऑक्सीजन बनाएगा जब समंदर हेल्दी होगा। समंदर मर गया आपका, ऑलरेडी फ़िश बहुत कम हो गई है। मैंने वो दिन देखे हैं कराची में जब हम बोट में जाते थे और क्रैब्स पकड़ते थे इधर ही, और हम क्रैबिंग जाते थे। हम इतना क्रैब पकड़ते थे, उसमें से आधे से कम हम रखते थे खाने के लिए, बाकी हम पानी में रख देते थे। अब जब हम क्रैबिंग जाते हैं तो उसको पैसे देते हैं, वो ख़रीद लेता है। वो क्रैब कहाँ से आ रहा है? केटी बंदर से आ रहा है, खारो चांद से आ रहा है, डाम से आ रहा है, इन इलाकों से आ रहा है, वादर से आ रहा है। कराची में क्रैब ख़त्म हो गया। कराची में आपको डॉल्फिन्स नज़र आती थी, वेल्स नज़र आती थी। इसका पानी समंदर का साफ़ होता था। अब हमारा सारा सीवरेज का पानी, पूरे पाकिस्तान का सीवरेज का पानी हमारे समंदर में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हम लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं। हम समझते हैं कि इसका हम पे कोई असर नहीं होता है। हम पे असर होता है। दिस इज द इफेक्ट इट हैज़ ऑन आवर लाइव्स। कराची एक वक्त पे 450 मिलियन गैलन्स, 450 मिलियन गैलन्स, लीटर नहीं, गैलन्स सीवरेज रॉ डेली, रोजाना समंदर में डाल रहा था। तो 450 कल के और 450 आज के, तो 900 मिलियन हो गए। कल आने वाले कल के 450 तो 1350 हो गए। आप सोचें 450 मिलियन गैलन्स, इट्स नॉट अ जोक। और वो रॉ सीवरेज हम समंदर में डाल देते हैं और वो सारी मखलूक को ख़त्म कर देती है। आपका गटर का पानी, गंदा पानी, हम उसको साफ करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं दोबारा। आफ्टर ऑल इट इज़ अ रिसोर्स, बट उसे समंदर में वापस जाना चाहिए। तो साफ करके डालें ना। आपको अगर कोई बर्तन में बहुत अच्छी सी चीज़ खाने के लिए डाल के देता है और कहता है जी मैंने ये छोले पकाए हैं, खाएं आप, तो आप बर्तन साफ़ करके उसको वापस भेजते हैं या गंदा देते हैं उसको बर्तन? आप साफ़ करके देते हैं बर्तन। आप बल्कि उसके अंदर कुछ डाल के उसको रिटर्न करते हैं। और ये बात मैंने अर्लियर ऑन कही थी कि जो मैंने इस ज़मीन से, इस धरती से लिया है, मेरा फ़र्ज़ है कि कम से कम उतना तो मैं वापस करूं, उसमें तो ख़यानत नहीं करूं। मैं तो समझता हूं कि अगर मैंने हज़ारों लोगों का वापस नहीं दिया उसको, तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी ज़ाया की। आप कम से कम जो आपने ख़ुद लिया है वो तो वापस कर सकते हैं। यू गॉट टू थिंक अबाउट इट। वी वर जस्ट टॉकिंग अ लिटिल व्हाइल अगो, और हमने कहा कि मे बी वी कैन do a meet and read. This book is available at Liberty, the flagship store. I don't know ये बाकी इनके हाँ available है नहीं, but if you go online you bound to be able to get it. But maybe we can, if you respond to this video positively, maybe we can all meet up at Liberty and read the book and exchange some ideas. I love books. I am at this stage in the process of cleaning out my home. हमेशा करता हूँ कुछ सालों में, और मेरे पास बुक्स बहुत निकलती हैं, और फिर मैं उसमें से कुछ निकालता रहता हूँ, दे देता हूँ, किसी स्कूल में भेज देता हूँ, किसी लाइब्रेरी में भेज देता हूँ। मैंने कुछ अरसे पहले मैंने फ्रे हॉल लाइब्रेरी को कुछ बहुत स्पेशल बुक्स ऑन गार्डनिंग दी थी। तो मैं अब फिर कुछ बुक्स निकाल रहा हूँ विच आई विल बी पुटिंग आउट। बट उसमें मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स जो है ना वो हैं जो वो ऐसी हैं कि या तो कोई पढ़े
या मैंने उनसे पार्ट नहीं करना है, विच इज़ वेरी रॉन्ग. आई शुड बी मोर देन विलिंग टू पार्ट विद देम, बट दे आर ट्रेजर्स. आई हैव गॉट बुक्स विच आर ओवर 100 years old, चाहे वो गार्डनिंग पर हों, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर हों. बुक ये तो आपको एक और दुनिया में ले जाता है. इट्स नॉट जस्ट योर इमेजिनेशन, बट आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. आप उनके दिमाग के अंदर चले जाते हैं, आप उनकी लाइफ लीड कर रहे होते हैं. और ये बुक, ये आपको इस धरती, इस ज़मीन, इस हवा, ये माहौल, उसका एक हिस्सा बना देती है. बुक्स पढ़ें, ये वाली पढ़ें, दूसरी पढ़ें, कोई भी पढ़ें. बुक्स पढ़ें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, माहौल का ख्याल रखें, बच्चों को बहुत प्यार दें, उनकी तरबियत करें. वो आप नहीं बनने वाले हैं. उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनानी है. उनकी दुनिया आपकी दुनिया से मुख्तलिफ होगी. आपने उन्हें ये नहीं सिखाना है कि तुमने ये करना है और तुमने वो करना है, और नॉट दोज थिंग्स. आपने उनका दिमाग खोलना है, आपने उनको सोचने की एबिलिटी देनी है. दैट इज़ वॉट यू हैव टू टीच देम, हाउ टू थिंक. They will figure it out for themselves. Don't tell them what to think. Teach them how to think. बहुत शुक्रिया आपका. अस्सलाम वालेकुम.